Morning. Today topic is calorific value. In this lecture, we covered the topic bomb calorimeter and Junkers gas calorimeter. In previous lecture, we studied the calorific value of a fuel sample is the heat which liberate on combustion. और किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए 2 कैलोरीमीटर होते हैं हमारे. फर्स्ट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड सेकंड इज जंकर्स कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू हम सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. द apparatus consisting of a cylindrical stainless steel bomb in which the combustion of fuel takes place. The bomb has a gas-tight screw cap to which a couple of stainless steel electrodes on oxygen inlet valve and a pressure release valve are fitted. A crucible is supported by a ring attached to one of the electrodes. The bomb is placed in a copper calorimeter which is surrounded by an air jacket and other water jacket to prevent heat loss due to radiation. The calorimeter is provided with an electrically operated stirrer and a Bachmann thermometer to measure the rise in temperature. This is the diagram of bomb calorimeter. In bomb calorimeter, at center, this is crucible. Here, crucible, we put the coal sample. We put the coal sample. This is crucible, and this is stainless steel. And here we put the fuel. ओके, जिस भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करनी है उसको हम यहाँ पुट करते. एंड दिस इज द बॉम्ब. इट इज स्टेनलेस स्टील बॉम्ब and coal sample attached with electrode to the 2 magnesium fuse wire, and these 2 electrode attached to the 6-volt battery to supply the current, and these bomb is situated in the copper calorimeter. This is the copper calorimeter. In copper calorimeter, Bachmann thermometer is situated. In Bachmann thermometer, we measure the temperature 1/100 part, and this is the mechanical stirrer and electrical stirrer which do the continuous heating. क्योंकि electrical stirrer continuously stirrer होगा जिससे कि water की uniform heating होगी. And this copper calorimeter further covered by air jacket and water jacket to prevent the heat radiation loss. Okay, and here the oxygen valve where we supply the oxygen. Initially we set up the whole apparatus, and initial temperature in Bachmann thermometer we note. After then, we supply the current from 6-volt battery, and from current magnesium fuse wire is fused, and due to the magnesium fuse wire, coal is start to burn and heat is liberated, and these heat liberated absorbed by the water, and due to the heat absorbed by the water, the temperature of the water is increases, and final temperature in Bachmann thermometer we note. Okay, this is the whole process in bomb calorimeter. Now working of bomb calorimeter जो हमने initially भी discuss किए. 0.5 to 1 gram of air dried fuel is taken in clean crucible which is supported over the ring. The fine magnesium fuse wire is placed on the fuel sample and stretched
across the electrode. About 10 ml of water is fitted in the bomb to absorb any vapors. The bomb lid is tightly screwed and the bomb is filled with oxygen gas up to 25 atmosphere pressure. The bomb is then lowered into the calorimeter containing a known mass of water. The stirrer is worked and initial temperature of water is noted. The electrode of the bomb are connected to 6-volt battery and circuit is completed. The fuel burns and heat is liberated. The temperature of water gradually increases with the uniform stirring and attained maximum temperature is noted. Now observation and calculation. इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की है. वेट ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन इन क्रूसिबल सपोज x ग्राम. वेट ऑफ वाटर इन कॉपर कैलोरीमीटर इज कैपिटल W ग्राम. वेट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर. जो पूरा कैलोरीमीटर है उसका भी कुछ वेट होगा और उसके इक्विवेलेंट हम क्या लेते हैं, वाटर, और वो वेट है हमारा स्मॉल w. पूरा एपरेटस जब हम सेटअप करते हैं तो बेकमैन थर्मामीटर में इनिशियली जितना भी टेम्परेचर होगा वो हम नोट करेंगे और वो इनिशियली टेम्परेचर है हमारा T1. फाइनल टेम्परेचर फ्यूल सैंपल का कंबशन कंप्लीट होने के बाद जो भी फाइनल टेम्परेचर आ रहा है वो है हमारा T2. हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू सपोज L कैलोरी पर ग्राम. हमें मान के चल रहा है कि जो हमने फ्यूल सैंपल लिया है उसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, L. इट मींस 1 ग्राम फ्यूल सैंपल कितनी हीट लिबरेट कर रहा है, L. तो हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल सैंपल इज इक्वल X इंटू L. टोटल फ्यूल सैंपल कितनी हीट लिबरेट करेगा, उसका जितना मास है इंटू L. और हमने यहाँ फ्यूल सैंपल का मास या वेट कितना लिया है, X. तो X इंटू L. This is heat liberated by fuel sample. Now heat gain by water, W plus delta T change in temperature into specific heat of water, or W into delta T is equal to T2 minus T1 and specific heat of water is 1 calorie. Okay, heat gain by copper calorimeter is equals to weight of copper calorimeter into change in temperature T2 minus T1. Now main principle of bomb calorimeter is heat liberated by the fuel sample is equal heat gain by water and calorimeter. किसी भी फ्यूल सैंपल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हम किस प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूल सैंपल जितनी भी हीट लिबरेट करेगा वो उसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो लिबरेटेड हीट की क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है, तो टोटल हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल सैंपल हमारी XL एंड टोटल हीट गेन बाय वाटर एंड कॉपर कैलोरीमीटर. दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारी, XL इक्वल कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1. तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए फाइनली फॉर्मूला क्या है हमारा, L इज इक्वल्स टू W प्लस W T2 माइनस T1 अपॉन X. इस इक्वेशन से हम किसी भी फ्यूल की कौन सी कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, हायर कैलोरीफिक वैल्यू. Is it clear? Now next is lower calorific value. और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर फॉर्म्ड. और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल सैंपल के लिए हम कितना मान के चल रहे हैं, L. तो माइनस 0.09 H इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम एंड दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. यहाँ पर हमने 9H इंटू 100 किया है क्योंकि हमें हाइड्रोजन जो है न्यूमेरिकल में वो परसेंटेज में गिवन होगा. ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, 0.09 इंटू H. और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर.
दिस इज फिक्स फ्रॉम द मोल इक्वेशन। तो 9 जो डेटा है वो हमारा 9 कहाँ से आया है, इस मोल कंसेप्ट इक्वेशन से। नाउ इस अभी हमने इनिशियली जो फॉर्मूला डिस्कस किया है उस फॉर्मूले से फुल सैंपल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसके एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आते, तो उसमें हम कुछ करेक्शंस करते हैं। 3 करेक्शंस है हमारे, जिसमें फर्स्ट करेक्शन है हमारा फ्यूज वायर करेक्शन। ठीक है, हम फ्यूज वायर के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम एंड प्लेटिनम। और मैग्नीशियम और प्लेटिनम इग्नाइट होके जो हीट लिबरेट करेगा वो हीट भी वाटर एब्सॉर्ब करेगा और उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर वाटर के टेम्परेचर का कुछ पार्ट किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीशियम और प्लेटिनम की वजह से। तो मैग्नीशियम और प्लेटिनम फ्यूज वायर की वजह से जो भी कैलोरीफिक वैल्यू जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम फ्यूज वायर करेक्शन। और उस फ्यूज वायर करेक्शन को हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्मूले में से क्या करेंगे, माइनस। नेक्स्ट है हमारा एसिड वायर करेक्शन। कोल सैंपल में सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और सल्फर का कंबशन होने पर सल्फर कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, एंड सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड में। और एसिड फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होती है हमारी, हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें लॉट ऑफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट की वजह से भी कोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो हम एसिड फॉर्मेशन की वजह से जितनी भी हीट लिबरेट होती है उस हीट को भी हाई कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्मूले में से क्या करेंगे, माइनस। And last is cooling correction. And cooling correction is basically time taken to cool the water in calorimeter from maximum temperature to room temperature is noted. The rate of cooling dt degree Celsius per minute and the actual time taken for cooling T minute, and cooling correction of dt into T is added in rise in temperature. कूलिंग करेक्शन बेसिकली है हमारा कि जैसे ही कोल सैंपल का कंबशन कंप्लीट होता है हम स्विच ऑफ करते हैं, उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और वो हमारा फाइनल टेम्परेचर T2 आ जाता है। लेकिन बेसिकली जब तक पूरा एपरेटस रूम टेम्परेचर तक कूल डाउन नहीं होता तब तक भी उसका टेम्परेचर थर्मामीटर में क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। और वो जो टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज होने में जो हीट है वो किसका पार्ट है हमारा, फ्यूल सैंपल की कैलोरीफिक वैल्यू का। तो उस टेम्परेचर को हम T2 माइनस T1 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो तीनों करेक्शन की वजह से फाइनली जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो फॉर्मूला है हमारा कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस एसिड प्लस फ्यूज बाय करेक्शन अपॉन मास ऑफ फ्यूल। और इस फॉर्मूले से हम सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज जंकर्स कैलोरीमीटर। और जंकर्स कैलोरीमीटर के थ्रू हम गैसियस और वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। और इस इक्विपमेंट में प्रेशर गवर्नर, गैस फ्लो मीटर, बंसन बर्नर एंड कैलोरीमीटर प्रेजेंट होता है। द कैलोरीमीटर इज फिक्स्ड ऑन अ tripod stand having labeling screw to keep the calorimeter in perfectly vertical position. The calorimeter mainly consists of a gas combustion chamber, heat exchanger and water flow system. The entire system is covered by an outer jet in order to reduce the heat loss by radiation and convection. The two thermometers are used to record the temperature of inlet water and outlet water respectively. Water enters into the calorimeter through a constant heat and its temperature is noted. This is the diagram of Junker's calorimeter. This is Bunsen burner from we supply the
flame, and this is gasometer from where we supply the गैस. जिस भी गैस की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करनी है उस गैस को हम गैसोमीटर से सप्लाई करते हैं और यूनिट टाइम पर फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस सप्लाई करेंगे. ठीक है, ये हमारा इनलेट ऑफ वाटर जहां से हम वाटर इनलेट करते हैं और इनलेट वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए भी थर्मामीटर हमारा सिचुएटेड होगा जहां से हम इनिशियली थर्मामीटर नोट करेंगे. ये हॉट वाटर को बाहर निकालने के लिए आउटलेट है और हॉट वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए यहाँ पर भी थर्मामीटर होगा. ये जो अब है ये हमारी फ्यू ट्यूब्स हैं. इन फ्यू ट्यूब्स में वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करेगा और हीट एब्जॉर्ब करेगा. लास्ट में हमारी फ्यू गैसेस को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट है और इन फ्यू गैसेस का टेम्परेचर नोट करने के लिए भी थर्मामीटर होता है. और फ्यूल सैंपल में जितना भी हाइड्रोजन है वो कंबशन से कन्वर्ट होगा स्टीम में और इस पूरे प्रोसेस में जितनी भी स्टीम बन रही है वो कंडेंस होके यहाँ पर सेटल हो जाएगी स्टीम कंडेंसेंस में, जहाँ पर हम स्टीम का भी मास नोट करेंगे. Now working of Junker's calorimeter, the sample of gas whose calorific value is to be determined passes through a pressure governor and then through gas flow meter and finally burns in Bunsen burner. The hot product of combustion moved upward in the chamber, then downward and finally escape through the exit where its temperature is measured. The heat generated by combustion of gas is absorbed by the circulated cold water. When the steady conditions are established, then the volume of gaseous fuel burned, the weight of water circulated, the steady rise in temperature are noted. Now, calculation V volume of the gas burned in certain time, T temperature of incoming water, T2 temperature of outgoing water, and W weight of water collected in that time. So here formula of higher calorific value is equals to W T2 minus T1 upon V. V हमारा वॉल्यूम है और टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर होगा हमारा मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. सेम बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल हम यूज करेंगे यहाँ भी. हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल सैंपल इज इक्वल हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर सैंपल. नाउ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू. लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए हमारा जो फॉर्मूला है जंकर्स में वो है हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस m upon V into 587 and 587 is the latent heat of steam and m is the mass of steam condensed in certain time. पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी स्टीम कंडेंस हो रही है एंड वी वॉल्यूम ऑफ द gaseous fuel which we taken in gas calorimeter. Okay, thank you.